الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. معزز صدر جلسہ، نوجوان بھائیوں، آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان ہے انسانی معاشرے میں امن کیسے قائم ہوگا۔ اپنا مال، اپنی عزت و آبرو، اپنی جائیداد، اپنا گھر بار، اپنی اولاد، ان سب کو لاحق خطرات نے ایک ایسی بے چینی سے دو چار کیا ہے کہ زندگی کے اندر کا چین و سکون ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں پر دہشت گردی کا سایہ ہم اور آپ کو نظر آ رہا ہے، پوری دنیا اسے محسوس کر رہی ہے۔ یا پھر ٹی وی چینل وغیرہ پر آپ کی نظر ہو، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر جس مسئلے کو انسانیت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بتایا جا رہا ہے وہ ہے دہشت گردی۔ آج دنیا کے یہ سارے بڑے رہنما، چاہے ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، دہشت، خوف اور سراسیمگی کا یہ جو ماحول ہے، اس ماحول کو انسانی سماج، انسانی معاشرے کے لیے دعویٰ ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور دنیا کو دعوت کی ہے کہ اسلام انسانی سماج کی، انسانی معاشرے کے سبھی مسائل کا حل ہے۔ ہم جب یہ دعویٰ آپ کے ساتھ آپ کی نظر میں موجودہ دور کے خوف و ہراس کو ختم کرنے کا کیا حل ہے؟ اسلام کی وہ کون سی تعلیمات ہیں کہ جن کے ذریعے اس معاشرے کے اندر امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے؟ اور اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شفیق عالم خان ہے اور میں جمعیت اہل حدیث کا ناظم ہوں۔ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث کی جانب سے آج 14 اپریل بروز منگل عظیم الشان اجتماع منعقد کیا گیا۔ یہ اجتماع دراصل امام مسجد نبوی صلاح بن بدیر حفیظ اللہ کی آمد پر ان کے استقبال میں عظیم الشان اجتماع منعقد کیا گیا تھا، لیکن شیخ محترم کے ہندوستان دورہ منسوخ ہونے کے بعد ہم نے اس اجتماع کو ہمارے دفتر کی مسجد محمدیہ اہل حدیث میں منتقل کیا۔ الحمدللہ ہمارے اجتماع منعقد کرنے کا مقصد لوگوں کی تربیت و اصلاح کرنا ہے اور لوگوں کے اندر پائے جانے والی برائی اور خامیوں کو دور کرنا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ساری انسانیت کو پیغام دینا ہے کہ کامیابی اور کامرانی صرف کتاب و سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ امن کا قیام بھی کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے میں ہے۔ امن کے قیام کے لیے، ہر طریقے کی کامیابی کے لیے اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں کے تزکیے کے لیے ہم نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ الحمدللہ آج کے ہمارے مقررین میں فضیلت الشیخ سید واجد حسن مدنی، نائب امیر شہری جمعیت اہل حدیث مولانا سید حسین مدنی، سابق نائب امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، اور اسی طرح مولانا عبدالحسیب مدنی بنگلور اور مولانا شمیم فوزی پیس ٹی وی مقرر، اور مولانا عبدالرحیم مکی صوبہ تلنگانہ، ان تمام کے خطابات رکھے گئے۔ الحمدللہ اب تک علماء اکرام نے اپنے بصیرت افروز خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं मोहम्मद अब्दुर्रहमान फ़ारूक़ी हूँ और मैं शहरी जमीयत अहले हदीस सदराबाद और सिकंदराबाद का जो है एक अदना तरीन खादिम यानी अमीर हूँ। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ जमीयत अहले हदीस हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। और जहाँ तक कि इस जलसे का ताल्लुक़ है या और जो है इज्तिमात का ताल्लुक़ है, उसके सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि हमारा दीन इस्लाम है और अल्लाह ताला सारी कायनात को एक मकसद के तहत पैदा किया है। हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है इस्लाम पर अमल पैरा होना है। इसी सिलसिले में हम इज्तिमात को मुनक़िद करते हैं और इस्लाम की दावत को पेश करते हैं और अपने भाइयों में जो गुमराहियाँ पैदा हो गए हैं उनको रफ़ा दफ़ा करने की जो है तन मकदूर जो है कोशिश करते हैं। और जमीयत अहले हदीस का जहाँ तक के प्रोग्राम और मिशन है, ये इंतहाई पुरअमन मिशन है। और मैं आपके सामने ये भी बातें करूँगा कि हम जमीयत अहले हदीस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती। हम जो है हमारे जुलूस, हमारे प्रोटेस्ट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ और धरनाज वगैरह से में हम कभी भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। हम वेरी पीसफुल्ली बहुत ही पुरअमन तरीक़े से इस्लाम की दावत को पेश करते हैं, जो सारी कायनात का दीन है, हमारा ही नहीं तमाम मखलूक़ात का दीन है। जैसा अल्लाह ताला फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। तमाम कायनात जो है, आसमानों में जो है, ज़मीन में जो है, उनके दरमियान जो है सब अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, जो बादशाह है, पाक है, ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। तो बहरहाल हमारा दीन जो है इस्लाम है और हम इस्लाम पर अमल करने की हत्तल मकदूर कोशिश करते हैं, इस्लाम की दावत को पेश करते हैं और हम इन तमाम जो है सियासियात वगैरह के अंदर जो है ऐसे इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। इस्लाम का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इस्लाम तो एक पैगाम अमन है, पैगाम रहमत है, पैगाम हिकमत है, पैगाम खैर व बरकत है। इसका हमारा से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारी और ये इज्तिमा के मुनक़िद करने का भी यही है कि लोगों की तरबियत हो, तज़किया हो और अपने मकसद ज़िंदगी से वाकिफ़ होने। सबसे पहले वो अल्लाह के जो है साले बंदे बने और एक बेहतरीन शहरी बने और मुल्क और कौम की तामीर में अपना जो है साले रोल अदा करें। ये हमारा। और कोई पॉलिटिक्स से आती क्या सब दावत आई है हमारे कहीं? हाँ, कोई ऐसी सियासी जमात से कोई आता क्या? सियासी जमात से हमारा दावतनामा आता क्या? हम लोग नहीं आता कोई सियासी जमात से। अलबत्ता मिल्ली कुल जमाती, हाँ मिल्ली मसाइल में कुल जमाती इजलासों में बुलाया जाता है, तो उसमें जो है उसमें हम जो है अपने शरीयत के हुदूद में, शरीयत जहाँ तक के हमारे से मुतालिबा करती है, उसके इस्लाम के तकाज़े हैं, उनको मलहूज़ रखते हुए उनके पेश नज़र हम इज़हार ख्याल करते हैं। वही नाज़िम मालिया सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना हूँ। आज के इज्तिमा का जैसा कि हमारे नाज़िम साहब ने मकसद बयान किया कि खतीब और इमाम मस्जिद नबवी सालेह अल बुदैर की आमद पर हमने प्रोग्राम डिसाइड किया था मुश्तरका इश्तिहार सूबाई की बुनियाद पर हालात के तहत वो नहीं आ सके, जिसकी बिना पर हमने उस प्रोग्राम को यहाँ शिफ्ट किया और मौजूदा हालात के तनाज़ुर में जमीयत के ज़िम्मेदारों ने मुनासिब समझा कि शहर और सूबे में जिस तरह की सब एक दहशत की पोजीशन बनी हुई है, तो इन मसाइल के तहत हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और दहशत गर्दी के सही मफ़हूम और जिहाद के सही मफ़हूम को अपने प्रोग्राम में पेश करें और आवाम को और नौजवानों को इस बात की तरफ राग़िब करें कि दीन इस्लाम दीन खालिस क्या है और इस तरह के चीज़ों में शामिल होकर जमात, जमीयत, मरकज़, जमात और हमारे दीगर मसाले को, मज़हब को बदनाम करना मकसद नहीं है। इसलिए सही दीन पर अमल करें और दीन के जो तकाज़े उसको तकमील करें। इसी की बुनियाद पर हमने आज के अनामीन भी तय किए हैं और आज का जलसा मुनक़िद किया है। हम खुद जो पहले कोशिश करते हैं कि खालिसतन इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हो जाए, जैसा कि कुरान और हदीस है, इस पर हम अमल पैरा हो जाए हत्तल मौजूद, और उसी
सरचश्मे हिदायत की तरफ हम लोगों को बुलाते हैं। यानी हम कोई नया दीन नहीं पेश करते, कोई नए इस्लामी थ्योरीज जो है ईजाद नहीं करते, बल्कि उस इस्लाम को पेश करते हैं जिसको नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया। उस इस्लाम को पेश करते हैं जिसको सहाबा इकराम ने पेश किया और उस पर अमल पैरा हुए। उस इस्लाम को पेश करते हैं जिस पे ताबईन ने अमल किया और पेश करे, और उस इस्लाम को पेश करते हैं जिसको तबे ताबईन ने अमल किया और पेश किया, यानी फॉलोवर्स और फॉलोवर्स अमल करे और पेश करे। यही है हमारी इम्तियाजी खुसूसी है, प्रिस्टाइन प्यूरिटी के तरफ जो है हम इस्लाम की जो है लोगों को बुलाते हैं। और इस सिलसिले में लोगों के बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं दूसरे जमातों के, दूसरे तंजीमों के और अवामुन नास के जो है they have misunderstood us. The majority of the people have misunderstood us. क्योंकि हम जो है खालिसतन जो है इस्लामी तालीमात को पेश करते हैं, वो चीज़ उनको जो है हमारे जो है बर्दाश्त नहीं होती। तो ये हमारा तुर्य इम्तियाज़ है। हम कोई नया दीन नहीं पेश कर रहे हैं, कोई नया फिरका नहीं है, कोई हमारी नई जमात है। हमारी जमात उतनी ही खदीम है जितना इस्लाम खदीम है।